So, hello, dear student, and very good morning to all, and welcome to the class. Right. So, in this class, basically, we are going to see the solution of AIT 2 video solution. ठीक है. तो इसमें जो हम लोगों का PCM वाला पेपर था, उसमें केमिस्ट्री का सॉल्यूशन हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन फॉर ऑल ऑफ यू. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिए? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज that is the ionic radii of Sb3, Bi3 and As3 follow the order. So for this we know that ionic radius is directly proportional to the number of shell. ठीक है, किस पे डिपेंड करता है ये? नंबर ऑफ शेल. यानी जिसमें नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे उसका आयनिक रेडियस भी ज्यादा होगा. And these all element belong to 15th group, right? Nitrogen, right? So this is group 15 element, that is nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Okay. Now, so they all belong to the 15th group. As we move down the group, number of shell increase and it is directly proportional to the ionic radius as well. So which of the following is correct, beta? That is the long greater in size is bismuth, then come Sb, right? And then come As3. So option C is absolutely correct. Now, they are asking the correct melting point order of group 15 element. ठीक है. So melting point of group 15 element increase up to arsenic, right? When you move from nitrogen, phosphorus and arsenic, their melting point is increase. So melting point increase. For example, phosphorus having more melting point than nitrogen, arsenic having more than phosphorus, but then decrease up to bismuth. Then उसके बाद क्या हो जाता है? Decrease up to bismuth. तो which of the following is the correct option बेटा? क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन के लिए? जल्दी बताओ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक. यहाँ तक तो इंक्रीज होगा. उसके बाद क्या हो जाएगा? दैट इज यहाँ पे हमारा देखो ये ऑर्डर देखो, नाइट्रोजन से ज्यादा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से ज्यादा आर्सेनिक, देन स्टार्ट डिक्रीजिंग. तो एंटीमनी से ज्यादा भी आर्सेनिक, बिस्मथ से ज्यादा एंटीमनी. सो ऑप्शन ए जो है वो हमारे लिए बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज करेक्ट ऑप्शन. डन. चलिए नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 33. 33 क्वेश्चन पे चलते हैं. क्या बोल रहा है 33 क्वेश्चन? दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर द ग्रुप 15 एलिमेंट? की ग्रुप 15 एलिमेंट के लिए कौन से स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है? द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ग्रुप 15 इंक्लूड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एज वी गो डाउन द ग्रुप देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम द नॉन मेटालिक टू मेटालिक कैरेक्टर. दिस इज आल्सो करेक्ट बिकॉज व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप metallic character increase. The starting element of the every group is non-metal in nature, but when you move down the group, they are non-metallic. Metallic character increases. Nitrogen and phosphorus are the non-metals. Arsenic, antimony are the metalloids, and bismuth is a typically metal. This is also correct. So we can say that all of the above statements are correct. जितने भी statements है वो सभी क्या है? Correct है. चलो move to the next question. In which of the following group when the helium is placed its all the properties are satisfied? कह रहा है कि कौन से ग्रुप में अगर हम हीलियम को प्लेस्ड करें तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा. ठीक है. तो ध्यान से समझो. विद एल्कली मेटल, with halogen, with inert gas या none of these, right? So ध्यान से हीलियम की बात हो रही है. So ध्यान से अगर आप इसमें देखो तो differentiating electron enter in the subshell in case of helium, right? Hence it is a s block element and its electronic configuration भी क्या होता है? That is 1s2. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है हीलियम का वो कितना होता है? 1s2. s सबशेल में एंटर कर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2. So it make it inert in nature, hence it is placed with the inert gases. तो इसको किस में रखा जाता है? इनर्ट गैसेस में, क्योंकि इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है. तो जिसका भी ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होता है उसको हम इनर्ट नोबल गैसेस में प्लेस्ड करते हैं. ठीक है. चलिए नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है. कि व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इन द टर्म्स ऑफ मोलर सॉल्युबिलिटी फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ HgCl2. तो चलो देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस HgCl2, इसको अगर हम रिएक्शन लिखे तो कैसे डिकम्पोज होगा? तो डिकम्पोज इनटू Hg2 प्लस प्लस 2Cl नेगेटिव. तो ये इसका रिएक्शन हो गया. नाउ लेट अस अज्यूम द सॉल्युबिलिटी ऑफ Hg प्लस 2 इज S और इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई बेटा? दैट इज 2S. तो यहाँ पे अगर हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालें दैट इज KSP, तो वो कितना हो जाएगा? दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Hg+2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव रेज टू द पावर देयर सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट. तो ये कितना हो जाएगा बेटा? दैट इज S इंटू, इतने यहाँ पे कितना लिख दूं?
s into 2s का स्क्वायर, सो इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 4s क्यूब। तो वैल्यू क्या हो जाएगा 4s क्यूब। तो 4s क्यूब इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। What are the sign of delta H and delta S for the following reaction? So this question is from the thermodynamics. So you need to find the sign of delta H and delta S. First of all, let's see delta S. So here in reactant side we have 1 mole of gas, but in product side we have a 2 mole of gas. It means gases increases, number of moles of gases increases, मतलब entropy भी increases. तो entropy तो यहाँ पे पॉजिटिव होने वाला है, तो इस ऑप्शन को नेग्लेक्ट करो, इस ऑप्शन को नेग्लेक्ट करो, यानी से बी और सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो एंट्रोपी क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। नाउ अब आपको डेल्टा एच देखना है। सो द गिवन रिएक्शन इज द कंबस्टन रिएक्शन, राइट? कौन सा रिएक्शन है? कंबस्टन। और कंबस्टन रिएक्शन हमेशा क्या होता है? तो कंबस्टन रिएक्शन में हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो गया कि डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एच जो होगा वो पॉजिटिव होगा। चलिए, move to question number 38. Consider the following equilibrium in a closed container, that is N2O4 gives us 2NO2 at a fixed temperature. The volume of the reaction container is half. For the change, which of the following statement holds true regarding the equilibrium constant Kp and degree of dissociation, that is अल्फा? ठीक है, तो Kp और अल्फा के लिए कौन सी बात इसमें से सही बोली जा रही है? तो ध्यान से देखो, जो केपी होता है ना इक्विलिब्रियम रिएक्शन का, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। However, the degree of dissociation will change according to the ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि केपी डज नॉट चेंज, केपी चेंज बट अल्फा डज नॉट चेंज। क्या होगा? तो टेम्परेचर को ही फिक्स कर दिया, तो जो केपी होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है बेटा? टेम्परेचर पे। तो ये टेम्परेचर फिक्स हो गया, तो केपी तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अल्फा की वैल्यू चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द ली चार्टियर प्रिंसिपल। तो केपी डज नॉट चेंज बट अल्फा चेंज, तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 39। क्या बोल रहा है? इन अ केमिकल रिएक्शन ए गिव्स अस बी, द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन। सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा? सो अगर आप इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन भी देखो ना, तो इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डॉट चेंज, यानी ऐसा टाइम जहां पे कंसंट्रेशन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। दिस मींस दैट द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए टू बी इज सेम एज द रेट ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम बी टू ए। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। यानी ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज द रेट ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। दोनों अगर सेम हो गया तो हम बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। चलिए, यूजिंग एमओटी थ्योरी प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो आपको बताना है कि इसमें से शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसका होगा। तो कैसे बता सकते हो भाई शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ? अगर आप ध्यान से देखो तो आप सबका ना बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर का एक ट्रिक भी बताया था मैंने कि नंबर इलेक्ट्रॉन सम करके निकाल सकते हो। तो O2 कितने होते हैं? O2 का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो 8 टू 16, 16 प्लस है तो 15 हो गया। तो ये एक 15 हो गया O2 वाला। O2 प्लस कितना हुआ बेटा? 15। उसी तरीके से O2 नेगेटिव कितना हो गया? 17। उसी तरीके से O2 ट्वाइस नेगेटिव कितना हो गया? 18। उसी तरीके से O2 ट्वाइस पॉजिटिव कितना हो गया? दैट इज 14। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा? हम सबको पता है 14 के करस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। उसी तरीके से 15 के करस्पॉन्डिंग कितना होता है? 2.5। 16 पे कितना होता है? 2। 17 पे होता है 1.5 और 18 पे होता है 1। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका दिख रहा है? दैट इज O2 प्लस का। ठीक है, किसका दिख रहा है? O2 प्लस का। सो हाइयर द बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रॉन्गर इन द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड शॉर्टर इन द बॉन्ड लेंथ। तो O2 प्लस जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, और जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। जिसमें पूछा था शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा O2 प्लस का है, तो वही शॉर्टेस्ट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्रॉपर्टी यूजली डू नॉट शो सेम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्रॉपर्टीज, कौन सा प्रॉपर्टीज जो है इसमें से विच डू नॉट शो द सेम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर
फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं कि अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो भी बढ़ती है। तो एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, है ना। while electrons get added in the same shell, also electron affinity भी कभी बताया था क्या, इंक्रीज होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एज द इलेक्ट्रॉन्स आर pulled to the atom by the greater force। अब यहाँ पे पूछा क्या था कि which of the following properties usually do not show same increasing or decreasing behavior, ठीक है। जो सेम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर को शो ना कर रहा हो, ऐसी प्रॉपर्टी का नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा इसमें, तो क्या बोल सकते हो, एटॉमिक रेडियस एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो है लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप आने पे इंक्रीज होता है ना, तो एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होगा, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होता है और एटॉमिक रेडियस क्या होता है बेटा, दैट इज डिक्रीज हो रहा है हम लोगों का वहां पे, ठीक है। सो वी कैन इजिली से दैट कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम जंप इन सच अ वे दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस फ्रॉम एक्स टू एक्स बाई फोर, देन व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज होगा। तो इसको ऐसे समझते हैं कि लेट अस अज्यूम दिस इज स्टेट वन, है ना, एंड दिस इज स्टेट टू, ठीक है। इसको स्टेट टू मान लेते हैं। तो स्टेट वन में काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है, तो यहाँ पे आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो दे रखा है एक्स, और स्टेट टू में काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हो रहा है, दैट इज एक्स बाई फोर। कितना चेंज हो रहा है, एक्स बाई फोर। अब हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। देखो काइनेटिक एनर्जी अगर एक्स है, ये हम रदरफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है उसमें हम पढ़ते हैं ये सब चीजें, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पूरा ओवर मॉडल के अंदर। तो काइनेटिक एनर्जी अगर एक्स है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है बेटा, हमेशा माइनस टू टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी ये टू एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बताओ, दैट इज माइनस टू एक्स बाई फोर। यही हुआ, है ना। क्योंकि पाइप ये याद रखना हमेशा, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो माइनस टू ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो पोटेंशियल एनर्जी अपना कितना आ गया टोटल, तो जो टोटल डेल्टा पी आ रहा है वो आ जाएगा माइनस टू एक्स बाई फोर, और माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, दैट इज टू एक्स। तो इसको आप सॉल्व करो जरा, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो इट्स कम्स आउट टू बी थ्री एक्स बाई टू आएगा, थ्री एक्स बाई टू। तो थ्री एक्स बाई टू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो थ्री एक्स बाई टू या ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस हिसाब से आप इसको बता सकते थे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये क्वेश्चन था, सिंपल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच रिलेशन का क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए मूव टू क्वेश्चन नंबर 45। क्या बोल रहा है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको बताना है इस रिएक्शन के अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या होगा, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है उसको जरा ध्यान से समझो। तो जो हमें दे रखा है वो क्या है बेटा, एक है हम लोगों का ब्रोमीन नेगेटिव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एमईओ, ठीक है। फिर है Me2N और Me3C। तो देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं। सो न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा केमिकल स्पीसीज होता है दैट डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर जो लोन पेयर को डोनेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं कि ये हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। और बेसिसिटी इज अ सबसेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। जो बेसिसिटी है न्यूक्लियोफिलिसिटी का ही सबसेट है। ऑल न्यूक्लियोफाइल आर लेविस बेसिक, क्योंकि लेविस बेसिक का ये टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करें। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर लेवी बेसिस, दे डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिसिटी भी बोलते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस भी बोलते हैं। इट्स जस्ट द नेम वी गिव थ्रू न्यूक्लियोफाइल, है ना। ब्रॉन्स्टेड बेस के नाम से भी इसको हम जानते हैं। क्लियर है ये चीज। चलो नाउ अब इसमें ध्यान से देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा वो क्या है कि इन Me3C कार्बन हैज मोस्ट रेडली इलेक्ट्रॉन पेयर टू अटैक ड्यू टू थ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना। यहाँ पे देखो एक सी है, यहाँ पे एक नेगेटिव है, और यहाँ पे तीन तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक मिथाइल ग्रुप,
दो मिथाइल ग्रुप और तीसरा मिथाइल ग्रुप, मतलब ये डोनर ग्रुप होते हैं सभी। और इस पे क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या चाहेगा कि भाई जल्दी से मैं अपना इलेक्ट्रॉन्स दूं, क्योंकि इसके पास डोनर ग्रुप लगे हुए हैं, है ना, तीन तीन डोनर ग्रुप लगे हुए हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। तो सबसे ज्यादा इसकी क्या होगी बेटा, टेंडेंसी होगी, यानी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड, इसकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। जबकि नेक्स्ट देखो, वाइल ओनली टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर अटैच्ड विद एन, एन के साथ कितने हैं, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऑक्सीजन के साथ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ऑर्डर क्या हो गया, सबसे ज्यादा बेटा बताओ। तो सबसे ज्यादा अगर मैं डोनेटिंग का पहले ऑर्डर बताता हूँ, फिर आपको बताऊंगा न्यूक्लियोफिलिसिटी को किस हिसाब से आप बताओगे। देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बोलोगे कि ये है मेरे पास बी आर नेगेटिव, तो इससे ज्यादा होगा एम ई ओ नेगेटिव, एक डोनेटिंग ग्रुप है, फिर हो जाएगा Me2N, ठीक है, ये हो गया। और इससे भी ज्यादा हो गया हम लोग का Me3C नेगेटिव, ठीक है, इसका हो गया। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हम लोग का एक ऑर्डर हो गया। अब इस हिसाब से आप रिप्रेजेंट कर दो न्यूक्लियोफिलिसिटी को। तो Me3 को क्या नाम दिया था, 4, तो सबसे ज्यादा होगा 4 का, फिर होगा 3 का, तो 4 3 2 1, यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो गया, 4 3 2 एंड 1, सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला है कि ऑन हीटिंग प्योर लाइमस्टाइन dissociate CaCO3 into CaO plus CO2. If 200 gram of limestone is heated in an open container, calculate the reduction in its weight. आपको reduction in its weight को find out करना है। तो चलो देखते हैं फटाफट कैसे आप कैलकुलेट करोगे। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखो, CaCO3 और ये हमें क्या दे रहा है, CaO प्लस CO2 दे रहा है। यानी अब ध्यान से देखो, यहाँ पे रिडक्शन इन वेट क्यों होगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, यानी द रिडक्शन इन वेट ड्यू टू द गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज फ्लाइंग ऑफ टू द ओपन कंटेनर, क्योंकि ओपन कंटेनर है तो गैसेस ऊपर बन के उड़ जाएगा। नाउ फॉर एवरी मोल ऑफ CaCO3 1 मोल ऑफ CaCO2 विल फ्लाई, है ना, यानी एक मोल जो CaCO3 है, 1 मोल ऑफ CaCO3, इस पे कितना CO2 निकलता है, 1 मोल ऑफ CO2 यहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है। अगर मैं 1 मोल CaCO3 की बात करूं तो 1 मोल CaCO3 से 1 मोल CO2 यहाँ पे निकल रहा है। अब बताओ, 10 फॉर द एवरी 100 ग्राम, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होता है, 100 ग्राम, एक मोल में 100 ग्राम होता है, तो 100 ग्राम पे 44 ग्राम CO2 निकल रहा है। तो पूछा है कि 200 ग्राम लाइमस्टोन पे, तो एक पे कितना होगा, तो एक पे हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 100, और पूछा है 200 ग्राम के लिए बताइए, तो 44 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 200, तो 88 ग्राम, कितना आ गया बेटा, 88 ग्राम। तो 88 ग्राम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कि 88 ग्राम जो CO2 होगा वो ब्लो ऑफ यहाँ पे हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47। क्या बोलता है, तो 47 कह रहा है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन द गिवन कंपाउंड, आपके पास गिवन कंपाउंड है, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर Mn का आपको यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। तो चलो सबसे पहले K2MnO4 में निकालते हैं। तो K2 का 2 हो गया, Mn को हमने x, K2 मतलब पोटेशियम का 1 होता है तो 2 बार है तो 2 हो गया, x माना है, O4 का हो गया -8 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है, 6, फर्स्ट केस। सेकेंड केस, 2x ले लो, और ये कितना हो गया, दैट इज -10 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा यहाँ पे 5। तो इसी तरीके से सबका आप निकालोगे, तो 6 आ गया, 5 आ गया, नेक्स्ट केस के लिए आपका 7 आएगा, और फिर कितना आएगा, 2 आएगा, सेम तरीके से। तो अब आपको अरेंज करना था बस, तो क्या बोलना था, द डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा किस में आया है, 7, 7 किस में आया है, दैट इज थर्ड में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा थर्ड का होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, थर्ड के बाद, देखो थर्ड, थर्ड के बाद सीधा आ गया कौन सा, 1, 1 के बाद क्या आया बेटा, 2, और 2 के बाद आया 4, तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या बोल रहा है, कि 58.5 ग्राम ऑफ NaCl एंड 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज वर सेपरेटली डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ वाटर, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कह रहा है कि 58.5 ग्राम ऑफ NaCl एंड 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज वर सेपरेटली डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट
यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर कि 58.5 ग्राम ऑफ NaCl एंड 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं ध्यान से, तो क्या होता था फॉर्मूला? तो वो होता था डेल्टा TB इज इक्वल टू आई इंटू KB इंटू एम, है ना। ये होता था पूरा फॉर्मूला। तो इसके लिए अगर आप निकालो, तो आई तो छोड़ो, आई क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है, KB को आप, KB की वैल्यू कुछ दे रखी है क्या? नहीं। सो इसने बोला था आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि NaCl जो है, NaCl सॉल्यूशन शो हायर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो निकालेंगे पहले NaCl के लिए निकालते हैं, फिर ग्लूकोज के लिए। तो अगर मैं ग्लूकोज के लिए निकालूं तो आई की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ठीक है। और KB की वैल्यू अगर मैं बात करूं, वाटर की बात हो रही है ना, तो 0.52 हो गई। और मोलालिटी मास ऑफ सॉल्यूट जो कि है 58.5 ग्राम, और ग्लूकोज है तो ये 180 हो गया, इन 2000 हो गया। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा? तो डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये WH2O जो है, इसको मैं ऐसे ही लेके चल रहा हूँ, क्योंकि दोनों को कैंसिल कर दूंगा मैं, ठीक है, दोनों का लिए मैं कैंसिल कर दूंगा। नाउ अगर मैं यही चीज निकालूं किसके लिए, NaCl के लिए, तो वहां पे डेल्टा TB कितना आ जाएगा? तो वहां पे आई आएगा, NaCl है तो आई की वैल्यू 2 हो गई, है ना। और 0.052 ही रहा। मास ऑफ सॉल्यूट अगेन 58.5 डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास भी 58.5। ये 1000 का 1000 रहा, वेट को मैंने यहाँ भी वेट ही रहने दिया। तो जब आप दोनों को डिवाइड करोगे, दोनों को कंपेयर करोगे, तो बोथ सॉल्यूशन हैव द सेम मोलालिटी। दोनों सॉल्यूशन का जो मोलालिटी है वो क्या है? ऑलमोस्ट सेम है बेटा। तो बोथ द सॉल्यूशन हैविंग द सेम मोलालिटी, बस फर्क क्या है? अच्छा, एक और चीज देखो बेटा, 58.5 ग्राम ऑफ NaCl था और 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज था, ठीक है। तो यहाँ पे 180 था, सो सॉरी। तो यहाँ पे 180 था, तो 180 बाई 181, वहां पे 58.5 बाई 58.1। तो मोलालिटी दोनों का सेम है, फर्क कहाँ है? यहाँ वेंटो फैक्टर में देखो, यहाँ 2 है, यहाँ सिर्फ 1 है। तो क्या हो गया? NaCl सोल्यूशन विल शो हाइयर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो जो NaCl है वो हाइयर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 50 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है 50th क्वेश्चन? तो 50th क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन कंटेनिंग 8.1 ग्राम ऑफ HBr इन 100 ग्राम ऑफ वाटर अज्यूमिंग दैट एसिड टू बी 90% आयोनाइज्ड। 90% क्या हो रहा है? ये आयोनाइज्ड हो रहा है। तो हमने आई का फॉर्मूला पढ़ा था, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू एल्फा। तो 1 का 1 रहा, n कितना होगा? HBr है तो 2 होगा, -1, और अल्फा कितना है? 0.90। तो ये कितना आ गया? 1 प्लस 0.90, यानी 1.90, ये आई की वैल्यू है, याद रखना है। तो आई की वैल्यू कितनी आई है? 1.90। नाउ हम सिंपली निकाल सकते हैं डेल्टा TF। डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है? KF, जो कि गिवन है 1.86 इंटू मास ऑफ द सॉल्यूट। तो कितना है? 8.1 ग्राम। मॉलिकुलर मास HBr का कितना होता है भाई? तो HBr का मॉलिकुलर मास ले लो, तो HBr का जो मॉलिकुलर मास होगा वो 81 हो जाएगा, ठीक है। तो HBr का मॉलिकुलर मास हो गया 81 इंटू 1000 का 1000 रहा, यहाँ पे आ गया 100, ठीक है। और आई की वैल्यू ले लो बेटा 1.90। तो दो जीरो से दो जीरो गेट कैंसिल, ये आया 81 से 81 कैंसिल, जीरो से जीरो गेट कैंसिल। तो ये कितना आ गया? 1.86 इंटू 1.90, ठीक है। तो 1.86 इंटू 1.90, तो ये आ गया 3.534। दिस इज डेल्टा TF, ठीक है। अब ये डेल्टा TF इतना आया है डिग्री सेल्सियस में। तो हमें पता है डेल्टा TF किसके इक्वल होता है? विच इज इक्वल टू TF0 माइनस TF, ठीक है। तो यहाँ से ये TF नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो ये TF कितना आ गया बेटा? ये TF आ गया, TF0 जो कि 0 डिग्री था, -3.534। तो आंसर आ जाएगा -3.534 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, 3.534। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51, देखते हैं। बोला है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड ए इज 70 mm and HG at 25 degree and it form ideal solution with B in which the mole fraction of A is given. Now you have to calculate the vapor pressure of pure B. तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, रॉल्स लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाते थे आइडियल सॉल्यूशन के लिए? कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाई द मोल फ्रैक्शन, प्लस दूसरे कंपोनेंट का ले लो P0 P मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। अब ये हम लोगों को 84 गिवन है, ये हम लोगों को 0.8 इंटू 70 गिवन है।
प्लस 0.2 इंटू पीबी निकालना है। तो इससे सिंपल क्या हो सकता है, सारी वैल्यूज गिवन है, बस पीबी निकालना है। तो इसको सॉल्व करो, तो पी नॉट बिकम्स आउट टू बी 140 mm ऑफ एच जी। तो 140 mm एच जी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो सिंपली रॉल्स लॉ जो था आइडियल सॉल्यूशन, उसी पे हमने फॉर्मूले में पुट किया और सिंपली निकाल दिया। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो, नाउ 52 क्वेश्चन देखते हैं कि 52 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन 52 बोल रहा है द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग सुक्रोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज दिस। ठीक है, और बोल रहा है कि जो आपका डिफरेंस है, यानी जो डिफरेंस है टीबी माइनस टीएफ का, वो डिफरेंस कितना दे रखा है, 105 डिग्री सेल्सियस। नाउ अब हमें बताना क्या है कि वेट ऑफ सुक्रोज इन द सॉल्यूशन इज अबाउट, वेट निकालना है। अब टीबी को हम कैसे लिखते थे, तो सबको पता है टीबी को लिखते हैं 100 प्लस डेल्टा टीबी, ऐसे ही तो लिखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से टीएफ को कैसे लिखते थे, तो 0 माइनस डेल्टा टीएफ, तो ये टीएफ का फॉर्मूला हो गया। और ये 105 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो यहां से अगर आप सॉल्व करो, तो जो आपका डेल्टा टीबी प्लस डेल्टा टीएफ निकल के आएगा, तो 100 को उधर ले जाओ तो कितना आ गया, 105 में से 100 गया, दैट इज 5। ये आ गया 5। ठीक है, अब देखो एक और चीज, जो डेल्टा टीबी प्लस डेल्टा टीएफ होता है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि केबी प्लस के एफ इंटू मोलैलिटी। बात तो एक ही है। ठीक है, इंटू मोलैलिटी। अब डेल्टा टी प्लस डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी है, 5। ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.86 प्लस 0.52 इनटू मोलालिटी क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, जो कि सुक्रोज है तो 342 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 100। बस, तो यहाँ से बस ये W को फाइंड आउट करना है, एकदम सिंपल कहानी। तो ये W को कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ऑन फाइंडिंग W कम्स आउट टू बी 72 ग्राम। कितना आ गया, 72 ग्राम। एकदम सिंपल सी कहानी थी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा W निकल के आ गया। चलिए, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 53। क्या बोल रहा है 53 क्वेश्चन, कि a 5% solution mass of sucrose in water has a freezing point of this and freezing point of pure water is this. What is the freezing point of 5% solution by mass of glucose in water? ठीक है, ग्लूकोज, एक सेकेंड बेटा। हाँ, ग्लूकोज इन वाटर का आपको निकालना है। चलो, तो एकदम सिंपल सी कहानी है, यहाँ पे बस कुछ नहीं, केएफ निकालना है आपको और वहीं से काम हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखा है कि डेल्टा टीएफ जो है उसका फॉर्मूला लिख दो, तो विच इज इक्वल टू के एफ इंटू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सॉल्वेंट, यही होता है। ठीक है, तो अगर यहां से मैं दोनों के लिए बात करूं, दैट इज डेल्टा टीएफ 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टीएफ 1, दोनों केस के लिए ले रहा हूं बेटा, टीएफ 2 बाई टीएफ 1, तो ये कितना आ जाएगा, सब कुछ तो कट जाएगा, बस क्या आ जाएगा, M1/M2, मोलालिटी बोलते हैं ना इसको पूरे को। तो M1/M2 ये चीज हमारी आ गई। अब M1 क्या है, केन शुगर, मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही है। ठीक है, M1 क्या हो जाएगा हम लोगों का, जो मॉलिक्यूलर मास था, क्योंकि देखो वेट और मास ऑफ सॉल्यूट सेम है, सॉल्वेंट सेम है, 1000 सेम है, के एफ सेम है, तो ये सिर्फ M1 और M2 के टर्म्स में आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ से आप कैसे लिख सकते हो उसको मुझे बताओ। तो फटाफट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा, कि डेल्टा टीएफ 2 जो कि मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाई पहले वाले का कितना है, तो पहले वाले का देखो क्वेश्चन में दे रखा है 273.15 और 271, तो डेल्टा टीएफ दोनों को माइनस करके निकल गया होगा। तो पहले वाले के लिए कितना दे रखा है, 2.15 केल्विन। और मॉलिक्यूलर मास कितना कितना है, दैट इज 342 डिवाइडेड बाई 180। तो यहाँ से सीधा मैं डेल्टा टीएफ 2 निकाल सकता हूँ, डेल्टा टीएफ 2 कितना निकल के आ गया, 4.085 केल्विन। ये डेल्टा टीएफ 2 है। तो यहाँ से अगर मुझे टीएफ निकालना हो, तो टीएफ कैसे निकल जाएगा बेटा, 273.15 में से आप माइनस कर दो 4.085 को, तो आंसर कम्स आउट टू बी 269 केल्विन। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ आया सबको क्या, कैसे निकाला, एकदम सिंपल सी कहानी है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 54। क्या बोल रहा है 54, 54 कहता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 0.10 एन सॉल्यूशन ऑफ CaI2 इज गिवन, cell constant of the cell is also given, the current x will flow from the potential difference between the electron is 5 volt, calculate the value of 10x। 10x ये मतलब I निकालना है, उसके बाद 10x तो निकल ही जाएगा।
तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं लैम्डा इक्विवेलेंट की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो अगर लैम्डा इक्विवेलेंट की बात करो तो इसका फॉर्मूला होता है k इंटू थाउजेंड डिवाइडेड बाई एन। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है k इंटू थाउजेंड डिवाइडेड बाई एन। राइट नाउ, यहां से अगर आप k निकालो, k, तो यहाँ से k कितना आ जाएगा? सिंपली दैट इज दिस इंटू एन, एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? दैट इज थाउजेंड। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो सबकी वैल्यू पुट करो, 0.1 डिवाइडेड बाई थाउजेंड। तो यहाँ से वैल्यूज कितने निकल के आ गए? 0.01। और यूनिट क्या होगी बेटा इसकी? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये कंडक्टिविटी निकल गई है। ठीक है, नाउ हम सबको पता है, क्या पता है हम सबको बेटा? कि ये जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टेंस, वो रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है? कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। यानी आप कंडक्टेंस की वैल्यू अगर लिखोगे जी, तो जी क्या होता है? के डिवाइडेड बाई सेल कांस्टेंट, दैट इज सेल कांस्टेंट। ठीक है, यानी आप लिख सकते हो 0.01 जो कि के था, और सेल कांस्टेंट 0.25 क्वेश्चन में गिवन है। तो कितना आ गया? 0.04 ओम इनवर्स। ठीक है जी, और इसको हम साइमन इनवर्स भी बोल सकते हैं। अब जी निकल गया तो आर क्या होता है? रेजिस्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। तो यानी रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ गया 1/0.04, और भी से 25 ओम। तो 25 ओम यहाँ पे क्या निकल गया है? रेजिस्टेंस। ना अब करंट का फॉर्मूला तो एकदम सिंपल है भाई। तो V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया? V/R। तो V कितना है? तो V हम लोगों को कितना दे रखा था क्वेश्चन में? 5। R कितना है? 25। तो ये कितना आ गया बेटा निकल के? 0.2 एम्पियर। और बोला था 10x निकालो, तो 0.2 का 10 कितना होगा? 10x करोगे तो 2 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 2। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना आ गया है? 2 आ गया है। डन। चलिए, move to next question. That is the resistance of 0.01 and solution of electrolyte was found to be this. ठीक है, तो ये आपको दे रखा है, रेजिस्टेंस इतना दे रखा है। कंडक्टिविटी सेल ऑफ द सेल कांस्टेंट इज दिस, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। बिल्कुल उसका उल्टा बोल दिया इसमें, कि आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है। मतलब आपको ये निकालना है बेटा, देखो k इंटू थाउजेंड डिवाइडेड बाई एन। अब देखो इसके लिए क्या, थाउजेंड और एन तो पता है, बस k निकाल लो। तो k कैसे निकलेगा बताओ? तो k का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है k जो होता है हम लोग का 1/r इंटू एल बाई ए। ठीक है, 1/r इंटू एल बाई ए। तो r दे रखा है, r कितना दे रखा है? 210। एल बाई ए कंडक्टिव, एल बाई ए को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट 0.88 है पूरा। तो इसको सॉल्व करोगे के को, तो के कितना आ गया ऑन सॉल्विंग? तो ऑन सॉल्विंग के कम्स आउट टू बी 4.19 इंटू 10 की पावर -3। जस्ट इसकी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो। तो जैसे ही पुट करोगे तो 4.19 इंटू 10 की पावर -3 इंटू ये हो जाएगा 1000, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? एन, जो कि था 0.1। तो ऑन सॉल्विंग यू गेट द वैल्यू 419। ठीक है, तो 419 हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, 59th क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं, लास्ट दो क्वेश्चन रह गए हैं तो इनको देखते हैं जल्दी से पहले। तो क्या बोल रहा है 59th क्वेश्चन में? कह रहा है आपको कि a second order reaction requires 70 minutes to change the concentration of reactant from 0.08 molar to 0.01 molar. Now the time required to become 0.04 molar was x minute. Find the value of x. आपको x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो हम सबको पता है फॉर द सेकेंड ऑर्डर क्या रिएक्शन होता है भाई, कि जो हमारा K2 होता है वो होता है, सेकेंड ऑर्डर के लिए बोल रहा हूँ, 1/t इंटू एक्स, एंड डिवाइडेड बाई होता है a माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज दे रखी है। 1/t की जगह आप 70 पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी है? 0.07। और ये कितना दे रखा है? 0.08। और a-x कितना आ जाएगा माइनस करके? 0.01, है ना? 0.08 माइनस 0.07, तो 0.01 आ गया। ठीक है, तो ये कब निकाल रहा हूं मैं? ये जब मैं निकाल रहा हूँ जब a-x का जो वैल्यू है वो 0.01 m है, ये उस केस में निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो बेटा, अब एक दूसरा केस ले लेते हैं, केस 2। ये कब है? जब a-x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.04 m। दो केस दे रखे हैं ना इस केस में। तो यहाँ से K2 कितना आएगा? दैट इज 1/t, 1/t इंटू 0.04 डिवाइडेड बाई 0.08 मल्टीप्लाई बाई 0.04। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन बन गई आपके पास, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो।
आपको ये टी तो निकालना है, सारी वैल्यूज गिवन है, तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो हम डिवाइड टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मिनट्स। ठीक है, क्योंकि एक ही अननोन है ना, ध्यान से देखो, ये आपको गिवन ही है, बस यही तो निकालना था, तो इजिली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं फटाफट, क्या बोल रहा है हम लोगों को। कह रहा है इन अ मिल्क एट 37 डिग्री सेल्सियस lactobacillus acidophilus has a generation time of about 75 minutes. Calculate the population x relative to the initial value at 30 minutes. ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम फॉर्मूला क्या याद रखते थे, फॉर द ग्रोथ काइनेटिक्स हम सबको फॉर्मूला पता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है -2.303 डिवाइडेड बाई टी log that is a upon a plus x. So this is for the growth kinetics, we all know. तो यहाँ से हम k निकाल सकते हैं बेटा, सिंपली है ना। तो k कैसे निकलेगा, के अगर आप ध्यान से देखो, इसी में ना मैं एक चीज ऐड कर रहा हूँ, -2.30 का 2.303 रहा, टी का टी रहा, लॉग का लॉग रहा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज एन नॉट डिवाइडेड बाई एन। ये हम ग्रोथ पॉपुलेशन के टर्म्स में लिखते हैं, एन नॉट बाई एन। नाउ हमें सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे गिवन है, अगर आप ध्यान से देखो तो हमें सारी चीजें गिवन है, टी गिवन है, सब कुछ गिवन है। तो ये हो जाएगा -2.303 डिवाइडेड बाई 75, ये गिवन है टाइम, एंड दिस इज लॉग 1/2। ठीक है, लॉग कितना है, 1/2, क्योंकि लॉग ए की वैल्यू 1 है और ए प्लस एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, तो हम क्या बोल देंगे, लॉग 1/2। ठीक है, तो ये लॉग 1/2 हमारा यहाँ निकल के आ गया। तो हम सॉल्विंग, ये वैल्यूज कितनी आ गई बेटा, 0.00924 मिनट इनवर्स, ये आ गया। नाउ बोल रहा है कि आफ्टर 30 मिनट, तो आफ्टर 30 मिनट्स क्या हुआ, देखो, तो आफ्टर 30 मिनट्स क्या देखने को मिल रहा है, कि जो k का वैल्यू है -2.303, सेम लॉजिक से, दैट इज t, अगेन दिस इज log n नॉट बाई n। ठीक है, तो इस पूरे की जगह, k की जगह तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 0.00924, और इज इक्वल टू में आ जाएगा -2.303। टाइम कितना दे रखा है, 30 मिनट, क्योंकि 30 मिनट के बाद पूछ रहा है, एंड दिस इज log n नॉट बाई n। तो बस यहाँ पे log n नॉट बाई n को निकालो बेटा, तो ये n बाई n नॉट जो निकल के आएगा, वो निकल के कितना आ रहा है, दैट इज 1.32। कितना आ रहा है, n बाई एन नॉट 1.32। ठीक है, तो यहाँ से हम सिंपली x की जो वैल्यू 100 ऑफ x निकालना था ना, तो अगर आप n बाई एन नॉट निकाल रहे हो तो वो कितना आ गया, 1.32। तो इसी को x बोला है हमने। अब इसका हमें कितने टाइम्स निकालना है, दैट इज 100 टाइम, तो 100 टाइम ऑफ 1.32, तो ये वैल्यू आ जाएगी 132। तो 132 जो था वो इसके लिए करेक्ट आंसर था। सो आई होप समझ आया होगा सबको, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है।